For translation to be started successfully, three events must occur, and these three events include: the ribosome must be recruited to the mRNA. Second, a charged tRNA must be placed into the P site of the ribosome. And thirdly, the ribosome must be precisely positioned over the स्टार्ट कोडॉन. तो ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं. जैसे ही ये तीन रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, ट्रांसलेशन जो है वो इनिशिएट हो जाएगी. द करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द राइबोसोम ओवर द स्टार्ट कोडॉन इज क्रिटिकल because this established the reading frame for the translation of the mRNA. आपको याद होगा कि स्टार्ट कोडॉन ही है जो mRNA का रीडिंग फ्रेम बनाता है. अगर ये स्टार्ट कोडॉन जो है वो आगे या पीछे से स्टार्ट हो रहा है तो एंटायरली डिफरेंट प्रोटीन्स जो है वो ट्रांसलेट होगी, वो सिंथेसाइज होगी. इसलिए ये जो पोजीशनिंग है, करेक्ट पोजीशनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इन प्रोकैरियोट्स द असेंबली ऑफ द राइबोसोम ऑन एन mRNA occurs one subunit at a time. The small subunit associates with the mRNA first. In prokaryotes, the association of small subunit with the mRNA is mediated by base pairing interactions between the RBS ribosomal binding site and the 16S rRNA of ribosome. For ideally positioned RBS ribosomal binding sites, the small subunit is positioned on the mRNA such that the start codon will be in the P site when the large subunit joins the complex. तो जो स्टार्ट कोडॉन है वो ए साइट, पी साइट या ई साइट पे आएगा. वो सिर्फ पी साइट पे आएगा, वो ए साइट या ई साइट पे नहीं आएगा. द लार्ज सब यूनिट जॉइंस इट्स पार्टनर ओनली एट द वेरी एंड ऑफ द इनिशिएशन प्रोसेस जस्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड. तो जब सब कुछ हो जाएगा और इनिशिएशन इज अबाउट टू स्टार्ट, उस वक्त आके लार्जर सब यूनिट जो है वो अटैच होगा. Thus, many of the key events of translation initiation occur in the absence of full ribosome. Translation initiation is the only time a tRNA binds to the P site without previously occupying the A sites. नॉर्मली ये होता है कि अमाइनो एसिड जो है, जो tRNA है, वो आके पहले ए साइट पे आता है, फिर वो पी साइट पे जाता है, फिर वो ई साइट पे जाता है. लेकिन ट्रांसलेशन इनिशिएशन में सिर्फ ये एक मौका है जबकि tRNA डायरेक्टली आके पी साइट पे लगेगा, ए साइट पे लगने के बगैर ही. दिस इवेंट रिक्वायर्स अ स्पेशल tRNA नोन एज द इनिशिएटर tRNA. सो ये जो है, ये इवेंट चूँकि डिफरेंट है, इसने पी साइड पे अटैच होना है, तो ये tRNA भी आम tRNA से डिफरेंट होना चाहिए और इस tRNA को कहते हैं इनिशिएटर tRNA. द इनिशिएटर tRNA बेस पेयर्स विद द स्टार्ट कोडॉन, और स्टार्ट कोडॉन AUG या GUG हैं, तो इनके साथ ये आके बेस पेयर करेगा. लेकिन जब AUG या GUG जो हैं वो रीडिंग फ्रेम के अंदर, ओपन रीडिंग फ्रेम में आएंगे, तो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे होंगे. फॉर एग्जांपल जो AUG है ये मिथ्यूनिन को करेगा और GUG जो है ये वेलिन को कोड कर रहा है. Although the initiator tRNA is first charged with a methionine, a formyl group is rapidly added to the methionine amino group by a separate enzyme which is called MET-tRNA transformylase. तो ये जो formyl group की addition से ये जो methionine है, it has been transformed into formyl methionine. Thus, rather than valine or methionine, the initiator tRNA is coupled to N-formyl methionine,
the charged initiator tRNA is referred to as F-MET tRNA. Because N-formylmethionine is the first amino acid to be incorporated into a polypeptide chain, one might think that all prokaryotic proteins have a formyl group at their amino terminal, क्योंकि पहला जो है कोडॉन हमेशा AUG होगा और हमेशा पहला अमाइनो एसिड जो आएगा वो फॉर्माइल मिथ्योनिन आएगा। तो जब तमाम प्रोटीन्स की सिंथेसिस में पहला जो है वो फॉर्माइल मिथ्योनिन ही है, तो इजीली वन कैन एक्सपेक्ट के प्रोकैरियोट्स की तमाम प्रोटीन्स में पहला अमाइनो एसिड फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है। दिस इज नॉट द केस. However, because an enzyme known as deformylase removes the formyl group from the amino terminus during or after the synthesis of polypeptide chain. तो जब polypeptide chain अभी बन रही होती है या सिंथेसिस हो चुकी होती है, उसके बाद एक एंजाइम deformylase आता है जो इस formyl ग्रुप को कट कर देता है। बल्कि in fact many mature prokaryotic proteins do not even start with a methionine, यानी कि फॉर्माइल ग्रुप कट भी जाए तो भी ज़हन में आता है जी हमेशा पहला अमाइनो एसिड मिथ्योनिन ही होगा। नहीं, बहुत सी प्रोटीन्स में पहला अमाइनो एसिड मिथ्योनिन नहीं होगा, क्योंकि अमाइनो पेप्टिडेजेस ऑफन रिमूव द अमाइनो टर्मिनल मिथ्योनिन एज वेल एज 1 or 2 एडिशनल अमाइनो एसिड्स। तो हर प्रोटीन सिंथेसिस में से मिथ्योनिन या 1-2 पहले अमाइनो एसिड जो हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं स्पेशल एंजाइम्स अमाइनो पेप्टिडेजेस से। तो इस तरह से हर प्रोटीन जो है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड से स्टार्ट हो रही है।